soaps, commercial soaps, are they harming your skin? सबसे पहले हमें नहीं पता होता है इसके अंदर क्या जा रहा है। 20 रुपए के साबुन के अंदर अगर आपको कोई बोले कि हम केसर डाल रहे हैं, डू यू रियली थिंक इट इज पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? Coming from a family of lawyers, तो वहाँ से switch करना towards a skincare business या into this particular, ये कैसे हुआ transition? आपको नवाजा गया था एक award से and it was guess few years back. I refreshed, then they called कि भाई नहीं आपको ही मिल रहा है and you have to be present, परसों awards है ये वो। तो मैंने घर पे भी नहीं बताया। वो घर पे बोले ऐसी शक्ल क्यों कर रही है? मैं कहा बताती हूँ। You age early. कुछ लोग आजकल आपने देखा होगा 20-25 के होंगे लेकिन they would look 30-32 या more matured. Why? Because they are not understanding what they are applying. मतलब ये तो सिंपल वी टेक बाथ वी यूज सोप्स, तो ये तो कोई रिसर्च वगैरह अभी तक तो नहीं कोई नहीं करता। Nobody has that time क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि यार नहा के जाना ही तो है। दिस इज बट दे फॉरगेट कि वो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर योर डेली रूटीन। तो सिंपली अगर हम सोप की बात करते हैं तो उसमें कितनी वेराइटीज हम फ्लेवर्स तो मेनी लाइक वी हैव अराउंड 10-12 फ्लेवर्स right now with us, and then there are many other seasonal flowers की आती है या seasonal fruit की भी flavors आती है। तो there are many, as much as imagination आप कर सकते हो। Now we have the most expensive category also, which is donkey milk. Donkey milk? Yeah, now if you'll go and Google it, donkey milk around 10,000 rupees per liter उसका cost है। Okay. And it is inspired by the Egyptian queen Cleopatra. It is said that Cleopatra donkey milk में अपना everyday bathing लेती थी। That is expensive. It costs around 1250 rupees. आजकल तो शावर जेल्स भी आते हैं। To be very honest, US UK मार्केट में शावर जेल्स बंद हो चुके हैं। Okay. They do not use शावर जेल्स anymore. But हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वो वहाँ से डंप की हुई चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। वेलकम टू अनदर सुपर स्पेशल एपिसोड ऑफ द एजे शो। मैं हर्ष जोशी आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारे एपिसोड में वी हैव अ वेरी वर्सेटाइल एंड डायनामिक पर्सनालिटी coming from a family of lawyers. Herself, she is a criminal lawyer by qualification. She's an entrepreneur, founder of Neera Naturals, India's first handmade skincare product manufacturing company. Apart from this, she's a national award winner, and recently she got honored. That is among 100 most influential personalities. So to my viewers, to my listeners, to my subscribers, it's a great honor, it's a pride, it's a privilege to have Lajja Brahmabhat on my podcast, The Ajay Show. So आपका बहुत बहुत स्वागत है इस podcast में। Thank you so much and hello everyone. Right. So सबसे पहली चीज़ शुरुआत इससे होती है that coming from a family of lawyers. Right. आपकी कई पीढ़ियाँ मतलब lawyers रहे हैं। Yeah. तो वहाँ से स्विच करना टूवर्ड्स अ स्किन केयर बिजनेस या इनटू दिस पर्टिकुलर, ये कैसे हुआ ट्रांजिशन? Well, a kind of funny story where पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई कर ली and thought I'll get married. To be very honest, I thought I'll get married by 21-22, but then LLB की पढ़ाई की, MBA की पढ़ाई की, jobs की, and that's how I did it. And one fine day, me and my mother were discussing about, let's do something with the skin thing. And because she's a cosmetologist, she has 35 plus years of experience. Okay. Yeah. So that's how me and mom indulged into all those things. And 2021 June, we started. और तभी मैंने LLM की पढ़ाई ड्यूरिंग दिस कंपनी वॉज बीइंग फाउंड, तभी मैंने अपने मास्टर्स की पढ़ाई की क्रिमिनल में। फॉर्चुनेटली हो भी गई। That's how it all started. Okay, जो लोग इस एपिसोड को सुन रहे देख रहे हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, yes, स्पेसिफिक अगर हम थोड़ा for a layman to understand. It's a person who understands your skin. It's not the one who would practice, certain kind of surgeries वो practice नहीं करेंगे, but they will consult you about your skin care, about what's good for you, what's not good for you, certain things. And she had her own salon and she used to practice in USA too. So 2018 में जब वो US से वापस आए, that was the time we thought of doing something outside of the box. But करते करते 3 साल हो गए हमको, try, tested, errors करते करते, and now we have found it. Yeah. That's it. Okay, one more thing, जैसे आपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट का बताया, मतलब जो ट्रीट करता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट का? Yes, वो डर्मेटोलॉजिस्ट। So this is the basic difference. Yeah, this is the basic difference. Cosmetic one, they can prescribe you, they can tell you what's good for you, what's not good for you. So anyways, अचानक ठीक है, your mom's background into this, तो
when you know while switching to this particular site, थोड़ा बहुत फैमिली में होता ना हल्का चहल पहल गॉसिप या कुछ कि लोगों ने डिस्करेज भी किया होगा कि यार ये क्या शुरू कर रहे हो? थोड़ा बहुत, बट थोड़ा बहुत था। इतना नहीं किया था। इतना नहीं किया। हाँ, आई कम फ्रॉम अ लॉयर बैकग्राउंड, तो वहाँ पे ये सब बहुत ब्रॉड फैमिली है, एडुकेटेड फैमिली से, तो ये सब नहीं हुआ था। बट रिलेटिव्स के हाँ, फैमिली नहीं हुई थी, बट रिलेटिव्स यस 100%। उनका थोड़ा हो गया था कि क्यों काम करवा रही हो मम्मी से इस एज में, लॉयर हो, यही काम करो, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। बट चलता है, क्योंकि कुछ भी ऐसा डिसीजन करते हो ना, हाँ। because मेरा मानना है कि some defined professions, lawyer, chartered accountant, Yeah. सरकारी नौकरी, तो Yeah. ये सब कुछ ये तो ना you are on a safe side, you know. Kind of, yeah, तो yeah, फिर yeah. that's why कुछ ना कुछ तो रहा होगा. This is what I हाँ, believe. बट सुनता कौन है, लाइक कौन हाँ, सुनता है, कौन सुनना सुनता है, किसको हाँ, है? सुनता कौन है यार। Right. So anyways, coming on this particular your venture Neera Naturals. Right. मैं सबसे पहले नाम के बारे में Neera Naturals और इसकी जो टैगलाइन है, you know, treat your skin to nature, if I'm Right. not wrong. Yeah, right. दोनों को आप थोड़ा elaborate कर सकते हो. So in simple word, नीरा means pure. Okay, pure. Pure. संस्कृत में इसका ट्रांसलेशन होता है प्योर। Yes, right. सो हम जब नाम ढूंढ रहे थे तो ऐसा नाम चाहिए था जो बहुत कैची हो, शॉर्ट हो, स्वीट हो, एंड उसका प्रोनाउंसिएशन यू नो किसी भी लैंग्वेज में चेंज ना हो। लाइक नीरा इज नीरा, यू कैन नॉट प्रोनाउंस इट नायरा और नॉयरा, नो, It's Neera. इट्स नीरा, राइट। तो ये थॉट प्रोसेस था, एंड फिर ऐसे ही टैगलाइन सोच रहे थे तो कॉन्सेप्ट किया, दिमाग चलाया, मैंने, कुछ फ्रेंड्स ने हेल्प आउट किया कि भाई व्हाई नॉट यू नो समथिंग लाइक दिस, लाइक बिकॉज यू आर इनटू नेचुरल थिंग, लेट्स जस्ट डू समथिंग लाइक दिस, एंड दैट्स हाउ टैगलाइन आल्सो केम अप। Treat your Skin to nature, yeah. मतलब natural, nothing, no chemical, No nothing. chemical, nothing, yeah. Organic. Completely organic. Completely yeah. organic. Okay, so one more thing, before we get into the you know this particular stuff, products and all, या फिर स्किन के लिए क्या सही है क्या नहीं है, बट मुझे एक चीज़ समझनी, आपका ऑफ कोर्स रोल कैसे डिवाइडेड होता है कंपनी में? When mother daughter duo works ना, तो बहुत कलेश होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, होता ही है, क्योंकि वो अपनी जगह से ही होते हैं, हम थोड़ा यू नो मिलेनियल काइंड ऑफ पीपल होता है। बट हमने रोल्स बहुत इजीली डिवाइड कर दिए। शी लुक्स आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, वहाँ पे मैं मेरा सर फोड़ती नहीं हूँ, एंड आई लुक आफ्टर द मार्केटिंग, सेल्स और ऑपरेशनल पार्ट, व्हाटसोएवर इट इज, एक्सपेंशन एंड स्केलिंग अप। तो वो वहाँ पे माथा फोड़ी नहीं करते, मैं वहाँ पे नहीं करती। इट्स सिंपल, हमारे रोल्स वहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। तो मतलब एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज है, हाँ, उसको उसी को कर, हाँ, उसी को मैं ज़्यादा नहीं पूछती उनको, और ना वो मुझे ज़्यादा पूछते। हाँ, ये होता है कि हम कभी कभी एक थॉट प्रोसेस में आते हैं कि लेट्स जस्ट यू नो व्हाई नॉट दिस, ये कर सकते या ये नहीं कर सकते, बट दैट्स अ ग्रुप डिस्कशन एनीवे, बट एज सच कुछ नहीं होता है। तो दैट्स हाउ हम बहुत क्लियर थे डे वन से कि आप ये करोगे, मैं ये करूँगी, पहले से ही डिफाइन। हाँ, पहले डे वन से भी डिफाइंड थे। हाँ, या राइट। ओके, सो कमिंग ऑन दिस हैंडमेड ऑर्गेनिक, ये डिस्कस करने से पहले सबसे पहले जो हम यूजुअली जो सोप साबुन वगैरह यूज़ करते हैं, वो केमिकल्स वगैरह से बना होता है, और जो भी चीज़ें यूज़ होती है उसमें, आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू, सोप्स, कमर्शियल सोप्स, आर दे हार्मिंग योर स्किन? ओके, सो आई विल गिव यू 3 पॉइंट्स। सबसे पहले हमें नहीं पता होता है इसके अंदर क्या जा रहा है। अब 20 रुपए के साबुन के अंदर अगर आपको कोई बोले कि हम केसर डाल रहे हैं, डू यू रियली थिंक इट इज़ पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इट्स नॉट, दूर दूर तक वो पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा, उसके जो केमिकल्स होते हैं दे टेयर योर स्किन, वो स्किन फाड़ने का काम करता है, जो आगे चल के यू नो एजिंग एंड रिंकल्स और ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ा देती है आपकी स्किन के। और तीसरा, इन द मोस्ट, वो सिंथेटिक केमिकल से बनता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर एनवायरनमेंट, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, एंड इन जनरल भी वो अच्छे नहीं होते। तो हो सके उतना उनको अवॉइड करो। एंड आई एम नॉट इवन टेलिंग कि सब खराब है, बट बीइंग अ यू नो स्मार्ट कंज्यूमर, व्हाट आई बिलीव, आप क्या लगा रहे हो वो पीछे एक बार पढ़ लो, क्या लगा रहे हो, हाँ पढ़ लो, वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो यू नो चैट जीपीटी है, गूगल है, वो आपको सब कुछ बता देता है कि यार व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट्स नॉट गुड फॉर यू। ऑल्सो देयर इज ऑल्सो दिस थिंग कि अगर आपको कुछ सूट करता है तो ज़रूरी नहीं मुझे करें, एंड वाइस वर्सा। एवरी स्किन इज़ डिफरेंट, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। तो हम किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये ही सूट करेगा, ये या ये सूट नहीं करेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन कोरिलेट विद दिस, आई विल नॉट कॉल इट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट जैसे मी बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट, अब किसी को ठंडा सूट करता है,
किसी को हाँ, शहद गर्म पड़ता है, किसी हाँ, को हल्दी सूट करती है, किसी को नहीं करती। तो agreed, जैसा agreed. आपने कहा कि सबकी स्किन भी अलग होती हाँ, है। सबकी स्किन अलग होती है, बिकॉज वॉट यू ईट, वॉट अंदर से जेनेटिकली जैसा बॉडी होता है वैसा ही आपका स्किन होता है, वैसे मेटाबॉलिज्म सबका अलग मेटाबॉलिज्म होता है। सबका अलग होता है, सबका अलग तो यू कैन होता नॉट कंपेयर। अब मैं मेरी ही बात करूँ तो इन जनरल एलोवेरा सबको सूट करता है, एलोवेरा कुकुम्बर मुझे नहीं करता है, है। ओके, आई एम नो टू एलोवेरा, तो नहीं कर मतलब पाती। ये तो जो आप कह रहे हो कि मतलब ये तो सिंपल, वी टेक बाथ, वी हाँ, यूज सोप्स, तो हाँ, ये तो कोई रिसर्च वगैरह अभी तक तो नहीं, कोई कोई नहीं नहीं करता, नहीं कोई नहीं करता, करता। नोबडी हैज दैट टाइम, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि यार नहा के जाना ही तो है, दिस इज, बट दे फॉरगेट कि वो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर योर डेली रूटीन, योर स्किन केयर रूटीन। ब्रीदिंग इज द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप, वो अच्छा किया है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। राइट राइट Yeah. राइट। तो अगर ये सब यूज करते हैं आप, जैसे आपने बताया जो सोप्स वगैरह होते हैं केमिकल से बने होते हैं, इसका डेफिनेटली इट इज हार्मिंग योर स्किन इन पर्टिकुलर वे। राइट, इसके कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हो कैसे हार्म कर रहा है? मैं मतलब या I'll blemishes, they increase your pimples. Pimples are something जो hormonal भी होता है, वो हम सबको होता है, but then there are certain thing कि वो स्किन की बैरियर्स को लेयर को कट ऑफ कर देते हैं, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमको याद रखनी चाहिए। और एज आई सेड ब्लेमिशेस, यू एज अर्ली, कुछ लोग आजकल आपने देखा होगा 20-25 के होंगे लेकिन दे वुड लुक 30-32 Yes. या मोर मेच्योर्ड, वाई? बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर अप्लाइंग, दैट इज़ द मोस्ट। और मैंने ये देखा है वायरल, मैंने अपनी लाइफ में और जो भी मेरे पास आते हैं उनका देखा है। दूसरा होता है कि पीपल लाइक यू, आई मीन जनरली मैन, आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनीथिंग, बट मर्द बाहर काम ज़्यादा करते हैं, धूप में घूमना, ये होना, तो काला हो जाना, टैन हो जाना, काला, आई वॉन्ट से यूज दैट वर्ड, बट टैन हो जाना, एंड देन यू फील दैट व्हाट्स रॉन्ग विथ माई स्किन, बट इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ टैन, जो ये नॉर्मल साबुन नहीं निकालते, चाहे आप कुछ भी कर लो। ओके, Yeah. सो गॉट इट। सो मेरा अगला सवाल ये, ऑफ कोर्स आपने इसका नुकसान बताया, मतलब क्या, हाउ इट इज हार्मिंग। नाउ व्हाई शुड समवन स्विच टू दीज, क्या फ़ायदा है? ठीक है, आपने Yeah. साबुन वगैरह केमिकल्स का नुकसान बता दिया, यहाँ पे इस तरह स्विच करना चाहते हैं दैट इज हैंडमेड, जो ऑर्गेनिक होते हैं, Yeah, नेचुरल yeah, होते हैं, व्हाई? आप थोड़ा एग्जांपल्स के साथ अगर बता I'll सकते give हैं। you one quick example. हम अब देख रहे होगे चॉकलेट, लाइक लेट मी जस्ट गिव यू वन क्विक एग्जांपल। चॉकलेट होता है तो बाहर कमर्शियल चॉकलेट्स कैसे बनता है, एक रेडी स्लैब आता है, यू जस्ट मेल्टेड एंड एड द इंग्रेडिएंट्स एंड डन एंड डस्टेड, राइट? बट हाउ एक्चुअल चॉकलेट इज मेड, ककाओ बीन्स लाओ, उसको फर्मेंट करो, उसका एक प्रोसीजर Yes. होता है, एंड देन यू गेट अ गुड क्वालिटी चॉकलेट। अब वो गुड क्वालिटी चॉकलेट और जो वो चॉकलेट है उसमें ज़मीन आसमान का टेस्ट में भी Definitely, फ़र्क होता है। definitely. Likewise with the soap also. So we are dealing with a soap process called as cold processed method, which takes around 45 days to be made. ओके, हाँ, 45 days का उसका लॉन्ग प्रोसीजर है, जिसमें ऑयल्स जाता है, इंग्रेडिएंट्स, हर्ब्स और वॉट एवर द फ्लेवर्स सब कुछ जाता है, एंड उसको एक 45 days तक उसको हमें स्टोर करना पड़ता है, क्योर होने देना रखना पड़ता है, देन 45th डे को हमको पता चलता है कि इज दिस सूप गुड टू गो और नॉट। तब तक हम Okay. भी एक रिस्क में होते हैं। ओके, सो इट्स लाइक इसका एक ट्रायल भी होता है इसकी मतलब? ट्रायल भी होता है कि हाँ ओके नाउ दिस सोप इज गुड टू गो, सो इट्स अ 45 days लॉन्ग प्रोसेस। तो सिंपली अगर हम सोप की बात करते हैं तो उसमें कितनी वेराइटीज, हम नेचुरल का, यू नो लिटिल क्यूरियस टू नो कितने इसकी वेराइटीज है अलग अलग फ्लेवर्स की अगर बात करें? Flavors though many, like we have around 10-12 flavors right now with us, and then there are many other seasonal flowers की आती है या seasonal fruit की भी flavors आती है, तो there are many, as much as imagination आप कर सकते हो, कितना try test कर सकते हो, आपके पास कितना knowledge है, कितना आप समझते हो Indian skin tones को, उस हिसाब से हो सकता है। You can do as many flavors as possible. It's not, there is no barrier, to be very very honest with you, there is no barrier to that. Also for the process there are also 3 methods I would say. One is cold processed, which I explained. One is hot processed method भी आता है, and then third one is melt and pour. Melt and pour is again जैसे मैंने आपको बताया, वो ककाओ चॉकलेट स्लैब रेडी होता है, and you just melt it and add the ingredients. Now what good companies do is कि वो अपना जो बेस होता है वो खुद ही बनाते हैं, तो they know what they are adding it. मार्केट में Okay. दूसरे बेसेस मिलते हैं आजकल, DIY दिखाते हैं कि you get a soap base and do this do that. No, you should know वो soap base भी किससे बना हुआ होता है। ओके, ओके, सो आप उसको पूरा, जैसा आपने कहा 45 डेज का प्रोसेस होता है, और अलग अलग इसके 3 आपने तरीके बताए, अलग अलग तरीके से बनता है, राइट राइट। तो मैंने जैसा आपने एग्जांपल लिया एलोवेरा का,
तो ऐसे कई फ्रूट्स के थोड़े फ्लेवर जो आप ऑलरेडी जिस पे वी आर वर्किंग एंड Yeah, we have a bestseller orange soup है जो हमारा. Okay. Orange has worked wonders for every skin tone, to be very skin tone, skin type, everyone. उसने बहुत बढ़िया काम किया है orange ने. We also have avocado soap, which is little bit expensive because again we do entire avocado fruit उसके अंदर जाते हैं. तो that again we have on. We generally deal with more over herbs and plants and those kind of things. So we have 2 fruit flavor if you want to say. It's one is orange and one is, as I said, avocado, but you can do as many as you want. एनी एक्सेप्शनल जो मतलब जैसे हर्ब्स का आपने बताया, फ्रूट का बताया, और कोई कैटेगरी जिसमें? Now we have the most expensive category also, which is donkey milk. Donkey milk? Yeah, now if you'll go and Google it, donkey milk around 10,000 rupees per liter उसका cost है. Okay. And it is inspired by the Egyptian queen Cleopatra. It is said that Cleopatra donkey milk में अपना everyday bathing लेती थी. So that's how we inspired that soap, and that is expensive. It costs around 1250 rupees because उसमें donkey milk जाता है. And as I said, it's a 10,000 rupees 10,000 liter. rupees a liter. That's the most expensive one. And second, we have a 24 karat gold and saffron soap. अच्छा, gold भी है? Yes, gold भी है. These two are the most expensive and थोड़ा हटके हम बनाते हैं इसको. It's a very niche market. Very. But I won't say niche. I would rather say एक बार you start using it and you get to know कि I can, you will not look back. आपको बहुत सी चीज़ें जो आप फालतू अपनी स्किन पे लगा रहे हो, आप टोटली धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर दो कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. बट आई वुड ऑलवेज से कि कुछ लगाओ या ना लगाओ, सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ. सनस्क्रीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. क्लाइमेटिक एटमोसफियर्स एंड चेंजेस बहुत वर्स्ट है अपने यहाँ, उसकी वजह से लगाना चाहिए. अच्छा, एक और चीज़ की, अगर किसी की स्किन को क्या सूट करता है क्या नहीं करता इन जनरल, अब चाहे वो नॉर्मल साबुन यूज़ करे, सोप यूज़ करे, या फिर जो एक नेचुरल तरीका यूज़ करे, ये कोई कैसे इवैल्यूएट कर सकता है? आई गेस उसके लिए हर एक को ना एक पैच टेस्ट ज़रूर करना चाहिए. दैट वुड आई से. ओके. आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि एक बार पैच टेस्ट करके देखो कि आपको सूट कर रहा है, एंड वेट फॉर 24 आवर्स वो क्या रिएक्शन दे रहा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा. बट हम नहीं करते. आज इसने ये यूज़ किया तो अब मैं ये यूज़ करूँगा तो मुझे भी चल जाएगा. वी डोंट अंडरस्टैंड, एज आई सेड, कि हर एक स्किन डिफरेंट है, हर एक टोन डिफरेंट है, हर एक की मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है. इसको सीरियसली मतलब होता है ना, ठीक है रोज नहाना है, हाँ. और साबुन सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया किसी को होता ही नहीं अच्छी है. लग गई, फ्रेग्रेंस अच्छी है, हाँ. या थोड़ा प्राइस रेंज वैसा है कि हमें सूट करता है, तो इसका कोई एनालिसिस नहीं करता? कोई नहीं करता. वी आजकल तो शावर जेल्स भी आते हैं. हाँ. सो दे लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, US UK मार्केट में शावर जेल्स बंद हो चुके हैं. ओके. दे डू नॉट यूज शावर जेल्स एनी मोर, बट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. वो वहाँ से डंप की हुई चीज़ें हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. We don't understand this is. Got it. So, I really surprised. जैसे आपने डोंकी मिल्क का उसके यूज़ किया, आपने चॉकलेट फ्लेवर बताया, ऑरेंज और शायद पपाया भी है. We have papaya, kiwi, we have lavender. मतलब all derived from nature, उसको all naturally derived, process yes, करके. all derived from nature. and इसके अंदर जो भी ऑयल्स जाते हैं वो भी हम खुद ही कोल्ड प्रेस्ड करवाते हैं. So हम खुद ही सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, हो सके उतना. अब इसमें जो इस तरह के जो सोप्स होते हैं जो नेचुरली, जो आपने जैसा जिक्र किया, तो उनका थोड़ा जो स्ट्रक्चर है एक नॉर्मल सोप से जो थोड़ा अलग होता है. हाँ. किस तरह से? वो थोड़ा रफ होता है, बिकॉज अगेन इट्स अ हैंडमेड थिंग. मशीनरी का इसमें यूज़ होता नहीं, तो हाथ से कटी हुई चीज़ या हाथ से बनी हुई चीज़ इज लिटिल बिट आई वुड से रस्टिक और थोड़ी रॉ लगती है. जब पड़ी हुई होगी तो आपको पता चल जाएगा दिस इज समथिंग नेचुरल. ये कोई फैक्ट्री से बन के आया हुआ नहीं लगता. वो उसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट होता है और वो बहुत बटरी भी होता है. वंस यू अप्लाई तो उसका जो लेदर बनता है वो बहुत ज़्यादा बटरी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है उसका. ओके. सो मतलब और एक और चीज़ भी शायद होगी, फोम वगैरह. हाँ, उसका फोम कम ज़्यादा होता रहता है. इट्स नॉट लाइक पूरा का पूरा फोम नहीं होता है, थोड़ा कम फोम होता है उसके अंदर. क्योंकि अभी एक माइंडसेट बन चुका है ना कि साबुन मतलब झाग निकलना चाहिए. हाँ. नाउ दैट्स रॉन्ग. उसका और इससे कोई लेना देना ही नहीं होता है. बहुत इसमें ऐसा नहीं होता कि झाग नहीं बनता, बट कंपैरेटिवली हाँ थोड़ा कम झाग बनता है. इसमें बनता तो है बट थोड़ा कम. राइट. नो, वन मोर थिंग, एज आई टोल्ड यू दिस इज अ निश मार्केट. मतलब निश उस हिसाब से देखिए, साबुन तो हर कोई यूज़ करने वाला है, लेकिन इतना रिसर्च करके व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड फॉर योर स्किन, उसकी परसेंटेज मेरा मानना है
इंडिया में अभी कम है? बहुत कम है इंडिया में. आई गेस इट्स हार्डली 5-10%. उससे भी कम होगी, उससे भी कम होगी जो अपनी स्किन को या बॉडी को बहुत सीरियसली लेते हैं. एंड बट आई गेस इट्स अ फन थिंग क्योंकि वो नीश मार्केट है एंड देन यू बिकम द फर्स्ट वन टू डू दिस, तो इट इज ऑलवेज अ Right. प्रिविलेज्ड वाली बात हो जाती है आपके लिए. राइट. मतलब कंपैरिजन में, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज या वहाँ पे बाहर, हाँ, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ बहुत बड़ी. वी एक्सपोर्ट देम ऑल्सो टू सर्टन कंट्रीज. सो इट्स अ ह्यूज मार्केट एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद नेचुरल एंड कोल्ड प्रोसेस्ड सोप, जो यहाँ पे नहीं है. आई वेंट टू दुबई, तो दुबई में तो आप शॉक हो जाओ कि बाप रे बाप, इतना पैसा कौन डालता है साबुन के पीछे, बट दे डू. And they prefer using soaps rather than those shower gels or body gels. They don't use it. लेकिन मार्केट बड़ी है, तो बहुत धीरे-धीरे बड़ी. करके अब इंडिया में जैसे हाँ, इंडिया में अब शुरू हो चुकी है. देर आर हमारे ऑन पेपर कंपीटर्स है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव हर्ड घर सोप्स आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब. सो they started this trend also. Then there is Forest Essential, Net Habit, Juicy Chemistry. They all are coming up slowly coming up with cold processed soaps also. मतलब हम थोड़ा नेचुरल की तरफ अब धीरे-धीरे हाँ, करके, हम धीरे धीरे जा रहे हैं. क्योंकि दुनिया ही आर्टिफिशियल हो चुकी है. अब तो कुछ आर्टिफिशियल, तो नेचुरल छोड़ दो. एग्जैक्टली. अब तो इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल हो गई. हाँ. राइट. जोक्स अपार्ट. सो एनीवेज, वन मोर पॉइंट. अगर आप जैसे ये सब चीज़ें, इफ़ यू आर सेलिंग और आपका इस चीज़ का बिजनेस है, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ कुछ फॉर्मेलिटीज या कुछ सर्टिफिकेट, इसके लिए सर्टिफाई होना पड़ता है. हाँ, कुछ ऐसी चीज़ वी आर सर्टिफाइड, वी आर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, वी आर SLS paraben certified, we are cruelty free certified, and we have official, we are also, how would I quote this, lab tested. हम clinically tested and clinically certified products. Okay, lab tested. ये Yes, सब yes. इसमें सारा प्रोसीजर होता होगा. हाँ, सब कुछ हम top to bottom सब देना पड़ता है. You have taken all the things, we have all the things. Yes. What are the minimum basic certifications? Minimum basic certificates, if anyone wants to come into this, is clinically tested, which is very very important, and organic. ये दोनों सबसे ज़्यादा important है, आपके पास होना चाहिए. That all processes. हाँ, but it's little tricky. अगर उनको लगता है कि ये सही नहीं है तो वो रिजेक्ट करने में भी 2 मिनट नहीं लगाते. Right. So anyways, one more thing. आपको बीच में as you know एक innovative idea कहूँगा, मतलब कि यहाँ पे introduce करना, and you are among the first few players, the first one in fact. तो आपको नवाजा गया था एक अवार्ड से, and it was guess few years back. Exactly 2.5 years back. In President of India. उसका आप थोड़ा अगर elaborate कर सकते हैं. Okay. So for every startups and whoever is listening, and if you are a startup, तो government incubation centers होते हैं. In Ahmedabad in Gujarat we have GUSEC, which is called Gujarat University Startup and Entrepreneurship Council. Okay. Right, it's an incubation center जहाँ पे कोई भी startup अच्छा उनको लगता है तो they incubate them. It's like वो बच्चे को incubate कैसे करते हैं, उसको बढ़ाना, सब कुछ वो आपको पूरी तरीके से help out करते हैं. तो मैं GUSEC में incubate हुई थी, but I incubated after I started generating revenue. तो मैं उनका वन ऑफ दो स्टार्टअप थी जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था. एंड दिस वाज हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा था, एंड दे सिलेक्टेड 10 women अराउंड अक्रॉस द नेशन. तो विथ मी देयर वर ITs, एग्रीकल्चर्स, बायोटेक्स, दिस दैट, एंड आई वाज ब्यूटी, नो रिलेटेड टू दैट, बट दे हैड दिस विजन के व्हाई नॉट ब्यूटी टू, लाइक सब कुछ थोड़ी करते, ब्यूटी और लग्जरी भी एक चीज़ होती है, एंड व्हाई नॉट टू डू दैट. तो बस ऐसे ही उनका कॉल आया, पहले ईमेल आया. आई रिफ्रेश्ड माई ईमेल बिकॉज यू विल नेवर बिलीव, इनिशियल जब कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो उसको 1-1.5 साल में ऐसा कुछ मिल जाए तो दिमाग चौधिया जाता है. सबसे पहले तो यू डोंट बिलीव कि ये कैसे हो गया. आई रिफ्रेश, देन दे कॉल्ड कि भाई नहीं, आपको ही मिल रहा है एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट, परसों अवार्ड्स है, ये वो. तो मैंने घर पे भी नहीं बताया. घर पे बोले ऐसी शक्ल क्यों कर रही है. मैं कहा बताती हूँ. फिर दूसरे दिन वी हैड प्रोटोकॉल्स बिकॉज अगेन इट वाज कोविड, प्री कोविड टाइम, तो कोविड टेस्ट वगैरह करने थे. वी लिटरली हैव रिहर्सल्स. यू एंटर फ्रॉम हियर, यू स्टैंड हियर, यू विल सिट हियर एंड देन यू विल डू एक्सरसाइज. इसकी रिहर्सल होती है. तो मैं कहा पहले रिहर्सल्स करके आती हूँ, अपना नाम कंफर्म करके आती हूँ, फिर आके बताती हूँ. घर पे बताया, दैट्स हाउ इट वेंट. एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. इनफैक्ट 2 चीज़ें. एक तो
जो कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स होते हैं कि क्या कर रहे हो, तो वो तो फिर तब से मुझे लगता नहीं कोई पूछ भी रहा हो Trust me, nobody has ever asked me any single question after that. उसके बाद. एंड अदर देन दिस, इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंस, सोशल मीडिया हो गया या फिर मुझे कहूँगा क्योंकि सी इफ यू आर रनिंग एनी बिजनेस आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स वगैरह यू नीड दैट पर्टिकुलर सपोर्ट. उसका कुछ हुआ मतलब So, being very honest to you, I'm still a bootstrap startup. I have not taken a single penny fund from anyone till date. Recently, we are going to be funded by AIC Nalanda, Orissa. We applied for Startup India Seed Funding Scheme and वहाँ से हमको अब जाके फंड मिलने वाले हैं. Oh, nice. तब तक I'm even till today sitting in front of you, we are not at all funded. We are completely a bootstrap startup. Okay, so you're on the verge of raising investment for that. Yeah, we are on the verge. तब तक हमने कुछ भी नहीं किया. तो ये जैसे मतलब आप कह सकते 2-3 साल तक आपने उसको अपने 3 साल या. तो ये एक मैं कहूँगा आपकी तरफ से काइंड ऑफ योर एडवाइस और मैसेज टू ऑल द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि कुछ बिजनेस शुरू किया तो एक होता है कि यार फंडिंग कब मिलेगी, तो उसका अप्रोप्रिएट टाइम आपके हिसाब से. Honestly speaking, मैंने जब शुरू किया था, आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे अकाउंट में 1,80,000 थे. 1,80,000 में मुझे मैन्युफैक्चरिंग सॉर्ट करना था, मुझे लाइसेंसिंग, फोटोग्राफी, ई-कॉमर्स वेबसाइट फलाना, व्हाटसोएवर आई हैड टू डू इट. तो आई डिड अ स्मार्ट वर्क कि हम पहले इतनी रेंज से शुरू करेंगे, ऐसी फोटोग्राफी, यू हैव टू डू अ कॉस्ट कटिंग. मैंने सोचा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं फंड रेस करूँगी अनटिल अनलेस, क्योंकि ये मेरे और मेरी मॉम के लिए भी ट्राई एंड मिस वाली बात थी. हो गया तो हो गया, हिट एंड ट्राई हो गया तो आई विल रेस, नहीं हुआ तो क्यों करना है, वाई टू वेस्ट समबडीज मनी. तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप फंड रेस करना शुरू कर दो अर्ली स्टेज से, पहले कुछ प्रूव करो, यू डिड समथिंग. लाइक मैंने अगर 1,80,000 के 1,80,000 निकाल लिया, देन आई प्रूव्ड माई सेल्फ, देन नाउ आई एम ऑन अ प्रॉफिट वाली बात होगी, राइट. हाँ, एक्सपेंसेस होते वो साइड अपार्ट, बट आप क्लियर क्यों नहीं होते. माई ऑलवेज क्वेश्चन, बड़ी ऑफिस बना देना, टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इट्स नॉट स्टार्टअप में यू हैव टू बी योर ओन मैनेजर, यू हैव टू बी CEO, यू हैव टू बी सोशल मीडिया हैंडलर, यू हैव टू बी म्यूज, सब कुछ खुद करने, मल्टीटास्किंग, देन एंड देन ओनली यू स्टार्ट समथिंग लाइक दैट. फंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बट अर्ली रेवेन्यू में मैं ऐसा बोलती हूँ कि जहाँ तक नहीं कर सकते हो मत करो. हाँ, फिर करो जब आप स्केल अप के टॉप पे आ जाओ कि अब स्केल अप करने की बारी शुरू हो गई है तो करो. एंड एनीवे, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इंडिया में विच आर हेल्पिंग स्टार्टअप्स. इफ़ दे फाइंड पोटेंशियल दिखता है आपको स्टार्टअप में, तो वो खुद ही आपको बहुत सारी हेल्प करते हैं. इट्स अ मिथ कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, करती है, बट वो देखती है कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप खुद क्या कर सकते हो, देन दे डेफिनेटली हेल्प यू आउट. वन मोर थिंग, एनी पर्टिकुलर सपोर्ट, ये सिर्फ एक जेनरिक क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया जैसे है, तो उसके भी तरफ से कोई इनिशिएटिव इस तरह के होते हैं? हाँ, सबकी तरफ से होते हैं, फ्रॉम एवरी गवर्नमेंट, फ्रॉम सेंट्रल स्कीम्स, फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स, एवरी स्कीम इज देयर. मेक इन इंडिया स्कीम होती है, वी फॉल अंडर मेक इन इंडिया, इसलिए मैं वी आर फॉलिंग अंडर, स्पेसिफिकली पूछ रहा था. यस, वी आर वन ऑफ देयर पोटेंशियल स्टार्टअप्स. उनका एक विजन है हमको लेके कि हमको इसको कंपैरिजन ऑफ बाथ एंड बॉडी वर्क्स के कंपेयर में इंडियन ब्रांड होनी चाहिए. So that's what, with that vision and mission, we are working together. Definitely. Now coming back to the award, मतलब एक बहुत ही यादगार लम्हा रहा होगा, right. because sharing the stage with the President of India, yeah. with even the Chief Minister of Chief Gujarat, Minister, Governor, उनके साथ share receive this. It's a great thing. Okay, so coming back to the range of products, जैसे हमने काफ़ी discussion की soaps के बारे में. Apart from soaps, what other products? So we started with soaps. Now we have bath salts, we have lip balms, we have entire hair care range coming up, which हमारा hair oil best seller हो गया. soaps के अलावा the second most thing is sold is our hair oils. So now we are also coming up with shampoo bars, conditioner bars. So basically Nira Naturals would be an entire, toiletry kind of a thing. So we are coming up with those things. Got it. Yeah. A to Z उसमें सब. A to Z toiletries, but everything would be organic and natural. Yeah. Bath salts, what is that? So bath salt basically is a mixture of 3-4 kind of different salts, and it has certain flavors.
बेसिकली आई पर्सनली यूज इट जब मुझे रिलैक्स करना होता है. यू नो देयर इज अ सॉल्ट वाटर बाथ हम बोलते हैं. यू ऐड दैट टू योर वाटर. बाल्टी में भी डाल सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि बाथ टब ही हो. मैं तो बाल्टी में भी डालती हूँ. एंड यू हैव इट एंड इट वर्क्स बेस्ट फॉर योर रिलैक्सेशन. ओके सो जो ओके गॉट इट या ऑलराइट. सो ये नेचुरली थोड़ा मैं उसको कोरिलेट कर रहा था. ओके हाँ. गुड. तो उसमें इनफैक्ट लिप बाम इज आल्सो देयर. या लिप बाम इज आल्सो देयर. और ये सारा ऑर्गेनिक ये सारा ऑर्गेनिक तरीके से, सारा कुछ हैंडमेड तरीके से बनता है. तो ये जो प्रोसेस है इसमें स्पेसिफिकली जब नेचर की बात करते हैं कहीं ना कहीं आर देयर inputs or elements from our practices, old practices of Ayurveda? 100%. Is it there? 110%. India has a vast variety of knowledge, whether it's beauty ले लो या physical health ले लो, कुछ भी ले लो. अब हम भूल जाते हैं, बट वहाँ आउट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्रीज में प्रैक्टिस होती है बहुत सी चीज़ें. लाइक फॉर एग्जांपल टर्मरिक लाटे, इफ़ यू नो, लाइक हल्दी वाला दूध. बेसिकली टर्मरिक लाटे इज हल्दी वाला दूध. Now fancy word turmeric latte and everybody was having turmeric latte. So likewise the same. हम जो भी यूज़ करते हैं हमारे ही एंशिएंट रेसिपीज़ होती हैं which works best for ourselves. Although there are थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है बिकॉज क्लाइमेटिक चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, तो वो एक प्रोसेस होती है. बट आई वुड डेफिनेटली से कि हम लोग जो भी करते हैं वो हम वहीं से डिराइव करते हैं. व्हाट इज़ गुड फॉर दी बॉडी एंड स्किन हम वहीं से डिराइव करते हैं. थोड़ी बहुत हमारी ऊपर नीचे कुछ चीज़ें करते हैं, as I said, because of the climate and the present time जो भी कुछ चल रहा है सिनारियो. डेफिनेटली क्योंकि आयुर्वेदा जैसे हमारे पहले एक समय में इन टर्म्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस ये सब एलोपैथी वगैरह ये तो पहले तो नेचुरल तरीके से लोग क्योर होते थे, जो भी चाहे वो इलाज हो, चाहे वो ट्रीटिंग योर स्किन या जो भी चीज़ हो नेचुरली हुआ करती थी ना. तो इतने टाइम तक जब लोगों ने सर्वाइव किया, हाँ वही, और हमसे अच्छे या लाइफस्टाइल के साथ, हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से. वी हैव वन आवर सोप विच इज कॉल्ड पंचामृत सोप विच इज मेड अप ऑफ घी, दही, हनी, या लाइक पंचामृत जो हम प्रसाद में डालते हैं. वी लॉन्च दैट लास्ट ईयर ड्यूरिंग राम जन्मभूमि का जब इनॉग्रेशन हुआ था, तब हमने लॉन्च किया था पंचामृत सोप. एंड इट वेंट आउट लाइक दैट. हमने बहुत लिमिटेड स्टॉक बनाया था. विद इन 3 days वी वर स्टॉक आउट. ओके. तो अभी वी आर स्टॉकिंग इट अप अगेन बिकॉज इट हैड अ ह्यूज डिमांड. बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी उस टाइम पे. और अगर इसको एक बार कोई यूज़ कर ले, मे बी अगर इसके नेचुरल तरीका इसको अगर कोई अडेप्ट कर ले तो दे विल नॉट लुक बैक. आई कैन वाउच ऑन दैट. वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे. फिर उनको वही चाहिए होगा. फिर चाहे आप कुछ भी बोलते नहीं ये चीज़ बकवास है, हम वही यूज़ करेंगे. ऑन द फैक्ट माई फर्स्ट क्लाइंट वॉज अ मैन जिन्होंने ऑरेंज सोप लिया था. एंड ही वॉज सो पजेसिव अबाउट हिज ऑरेंज सोप के घर पे वो किसी को यूज़ नहीं करने देता था. और अभी भी वो एक साथ 10-10 सोप्स खरीद के रख देते हैं. बोलते हैं मैं कभी भूल जाऊँ. तो हम जब फ्रेश बैच बनाते तो हम पहला कॉल उन्हीं को लगाते कि डू यू रियली वांट, हम 10 सोप्स निकाल देते. सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग. राइट. ओके, वन मोर थिंग इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस दैट इज फंक्शनिंग ऑनलाइन, जैसे आपकी वेबसाइट है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे होता है? मतलब ज़्यादातर ऑनलाइन आपके पास ऑर्डर्स आते हैं? अभी ज़्यादातर हम ऑनलाइन ही वर्क कर रहे हैं. सून वी वुड, एज आई सेड, अब हम स्केल अप के स्टेज पे आ चुके. नाउ वी आर गोइंग टू बी फंडेड. नाउ वी वुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फंड्स जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढे, मार्केटिंग, सॉलिड मार्केटिंग जो बोलते हैं ना, वो करें. बट अभी फ़िलहाल मेरा फोकस इसको लेके ऑनलाइन ही है बिकॉज ऑफलाइन स्टोर्स करना, खुद का स्टोर करना इज अगेन अ ह्यूज टास्क. रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉट ऑफ टाइम. इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब बहुत सॉलिड बनाना पड़ता है. अभी फिलहाल लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट. आई एम वन ऑफ दोज फाउंडर्स जो बोलता है ना, गो विद द फ्लो वाला मेरा सीन है. अभी तक प्राइमरीली वी आर ऑनलाइन. ऑफलाइन कुछ स्टोर्स में हम जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे विद इन 6-7 months. बट अभी फिलहाल हम ऑनलाइन हैं. फिलहाल के लिए ऑनलाइन. और इसमें जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन ज़्यादा होता है. अब इसमें जो मैं कभी जैसे बात करूँ प्राइसिंग की, अब जैसे नॉर्मल जो यूजुअल सोप होता है, वो सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूँ सोप का, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये. बट यहाँ पे थोड़ा इसका प्राइसिंग रेंज हाई नोट पे होगा क्योंकि आप नेचुरली इसको ऑर्गेनिक तरीके से इसको बना रहे हो. टाइम लगता है, कम से कम 45 days तो लगते ही हैं. तो प्राइसिंग तो ऑफ कोर्स इससे थोड़ी हाई एक्चुअली 10x ज़्यादा होती है. 10x बिकॉज रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 250 ₹250 से लेके 1250 रुपये तक के रेंज होती है हमारे पास. तो
प्राइसिंग होती है, ऑफ कोर्स आई विल नॉट डिनाई, बट अगेन एज हमने पहले डिस्कस किया, इट्स अ नेचुरल सोप, इट्स नॉट अ कमर्शियल सोप जो बाहर बिकता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंस. तो इसमें योर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अगर जैसे मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेयरनेस क्रिएट करते होंगे इसके जरिए, different channels. इसका जो हम कैंपेन्स भी कभी रन करते, लाइक राइट नाउ टॉकिंग अबाउट मेकिंग पीपल यू नो अवेयर अबाउट इट. हम जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं हम उनको भी बहुत सी चीज़ें फ्री वीज और व्हाट्सएवर, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक मैंने जो भी कुछ किया था वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक था. मैंने अपने बोलते ना मार्केटिंग में इतना पैसा लगाया ही नहीं था. इट ऑल केम इन बोलते गुड फेवर में चलता रहा. अभी ऐसा स्टेज है जहाँ पे यू नो विल गो विद गूगल एड्स, मेटा एड्स, मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट इट, रनिंग कैंपेन्स ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट इट. और ये नहीं है कि यू डोंट हैव बोलते ना एक्सपेंडिचर पावर नहीं है, आपके पास है. इंडिया में देयर इज़ पूरा एक नीश मार्केट है और बहुत से लोग हैं जो अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं, वेदर यू आर रिच और नॉट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल हो चुकी है सबकी. तो माई फोकस इज़ टू मेक अवेयर पीपल एज मच एज पॉसिबल टू स्विच टू द नेचुरल सोप्स. एंड बिकॉज ये गिफ्टिंग का भी एक ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है. अभी हमने गिफ्टिंग ऑप्शंस में भी इसको रखे हुए हैं, तो इट वर्क्स रियली वेल. मतलब किसी को कुछ अलग ही टाइप का आपने gift किया. अलग ही गिफ्ट के, पूरा नेचुरल एंड यू नो एवरीथिंग लाइक दैट. तो हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं. नहीं, ये तो आपने अभी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी का, तो भैया सबके पास आईफोन हो गया, कॉन्सर्ट में जाते हैं लाख की टिकटें ले रहे हो, तो यू विल नॉट स्पेंड 250-300 ओवर योर फेस और स्किन. उस हिसाब से तो है. बस एक होता है कि एक मे बी जो एक आम आदमी द माइंडसेट कि वो कि 20-30 रुपए ज्यादा खर्च नहीं करनी, वहां पे वो उसके लिए वो चीज फिट नहीं होती. राइट. बट अगेन वो 20-30 के साथ साथ 10 और चीजें मुझे स्किन पे लगानी पड़ रही, तो वो सेम ही हो जाने वाला है, सेम ही हो जाता है. स्क्रीन पे जल्दी थोड़ा असर पड़ता है. हाँ एग्जैक्टली. राइट. नो, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, बिकॉज ये जो होता है ना, साबुन लेने से पहले कोई इतना रिसर्च वगैरह कोई करता नहीं है. लेकिन धीरे धीरे करके डेफिनेटली, और थोड़ा बहुत लोग अब हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गए, धीरे धीरे इंक्लाइन भी हो रहे हैं. नेचर यू नो योगा, मेडिटेशन, दिस ऑल आर एंशिएंट आयुर्वेदा साइंस अपना जो बोलते हैं, धीरे धीरे उस चीज़ में इंक्लाइंड हो रहे हैं. ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रहे हैं. और खास करके कोविड के बाद बहुत चीज़ें, बहुत इकोसिस्टम चेंज हो गया. हाँ, अब ज़्यादातर चीज़ें यू नो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पे भी इतना ज़्यादा फोकस हो चुका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि यू नो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बूस्ट करें. ऐसा भी नहीं होता है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है अब इंडिया में. कॉन्शियस भी हो गए, साथ में ऑफ कोर्स यू नो हेल्थ इज वेल्थ, तो जहान है. राइट. So well, it was great to know about your particular venture, your journey. और एक लाइव एग्जांपल है, मतलब इन काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन जो भी आपने अभी तक अचीव किया है. साथ में कोविड में देवर केस स्टडीज, कुछ लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, बट लोगों ने उसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से ऊपर भी आए हैं उसमें. एंड योर इज वन एग्जांपल ऑफ दैट, की लाइव एग्जांपल की. और कि कोविड में जैसा आपने इनिशिएट उसी टाइम के लिए, मे आई नो द प्रिसाइज ईयर. सो 2021 10th June 2021 we officially launched Neera. आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्राइंग एंड टेस्टिंग, क्योंकि 2020 में तो कोई स्कोप ही नहीं था. 2020 तो हम सब कैसे निकला है वो तो डिलीट. 21 भी भयानक था. 21 फर्स्ट वेव, सेकंड वेव जो आया, माय गॉड, बहुत बुरी वाली हालत. बट हमने सोच लिया था कि यू नो लेट्स जस्ट डू इट, करना ही है. बोलो और क्रुक करना ही. हाँ, एक बार करके तो देखो, यू नेवर नो व्हाट कम्स नेक्स्ट फॉर यू, राइट? सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस थिंग. राइट. सो एनीवेज, wish you all the best. Thank for you so all much. your future plans. Congratulations again for Thank raising you the again. funding, for everything, for getting awards. और बहुत एक अच्छा एक और बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है. मतलब ठीक है, ये जैसा आपने बताया कि बाहर, इंडिया के बाहर इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, बट यहाँ भी धीरे धीरे ये अच्छा एक लाइव एग्जांपल है हमारे सामने, ये चीज़ डेवलप हो रही है इन टर्म्स ऑफ. ऑन द कॉन्ट्री, मुझे ज़्यादातर जो हमारे ऑर्डर्स भी आते हैं ना, यू विल नॉट बिलीव, इज फ्रॉम Tier 2 and Tier 3 cities. ओह माय गॉड, मैं खुद शॉक हो जाती हूँ जब हम मेट्रो सिटी से ज़्यादा Tier 2 Tier 3 cities, स्टेट्स लाइक झारखंड, स्टेट्स लाइक उड़ीसा, जहाँ पे आप सोच नहीं सकते, वो वहाँ से आते हैं ऑर्डर्स. लोग मतलब ये है कि people are going towards nature की तरफ वापस. Exactly. Right. So it was great to have you on this show. Thank you so much. It was great to have you on this podcast. Or again, wish you all the best. Thank you so much.